मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आप सभी का हमारे आज के चौथे दिवस के और इस कार्यशाला के 11वें तकनीकी सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ कंप्यूटर साइंस के विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर एस बी किशोर जी जुड़े हुए हैं। जब हम एनिमेशन की बात करते हैं तो एनिमेशन के बारे में सोचकर टेक्निकली हम ये सोचते हैं कि ये बड़ा मुश्किल विषय है, इसको किस तरह से उपयोग में लाया जाए। तो हमारे साथ डॉक्टर एस बी किशोर जी कल जुड़े, जो कि हेड है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, सरदार पटेल महाविद्यालय, महाराष्ट्र में। आप कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे शिक्षण अधिगम केंद्र एवं हमारे विश्वविद्यालय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं कि आप अपनी विषय विशेषज्ञता से जिस तरह से कल आपने एनिमेशन को एक सरल रूप दिया, वैसे ही आप यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिगार्डिंग रेफरेंस टैब के विषय में आप हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय एस बी किशोर जी, मैं आपका पुनः बार बार आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। वेलकम सर। Dear friends, dear respected faculty members, in the today's sessions we are going to discuss about the use and applications of references tab in Microsoft Word. So basically these uses, first of all we'll see what are the uses and for whom it is useful. For all those teachers who plan to write certain books, okay, for all the research scholars in order to write certain theses, or even the faculty members who want to write certain research paper, or even if you are preparing a certain report for your college or your school, okay, for all of them this reference tab is very much useful. Okay, let's see what are the, first of all we'll see the applications of it and then we will start one by one. If you want to generate the list of figures automatically, so what is the usual methods? You used to bring the पहले आप क्या करते हैं, फिगर को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद आप वहां पे नंबर देते हैं, फिगर 1, देन फिगर 2, फिगर 3 एंड सो ऑन। नाउ अज्यूम करो कि आपने 10 फिगर दिए और उसके बाद आपको लगा कि फिगर नंबर 2 और 3 के बीच में आपको और एक फिगर चाहिए। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू पूरे नंबर्स को आपको सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा, व्हिच इज अ वेरी डिफिकल्ट मैनर। ओके, स्पेशली अगर आपके हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में सपोज 10-12 फिगर्स है और हर एक का रीनंबरिंग करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। Not only for the figures, it may be a graphics, it may be tables, it may be equations, no issue. Then creating the list of tables automatically. For example, what is the table of contents? Anyone? Again, make it interactive only. What is the table of contents? Every book have a what? A table of contents. What is the significance of this? A table of contents give a summary of what all chapters and topics are covered in the book or in the report. That's good. Okay, it simply covers all the chapter that we are, the overall chapter that we are described in that particular book, or if it is thesis, then or any other books. Then creating the index. What is the index? Have you heard about it or have you seen ever? In every book you will find what the index at the end of pages. What is the purpose of that particular index? बुक के लास्ट में आप देखते होंगे ना, इंडेक्स रहता है। Yes, anyone please? So it is basically what index is, nothing particular tag or keyword. It means if you want to, for example, it might be possible that there were a number of important words that you have described in your book. Okay, in order to locate that particular word on a particular page, this index page will help you to find out that particular page very easily. So how to generate such kind of indexes for your books, we will discuss in the today's session. And finally, we will discuss what is citation. Let me know please, among yourself, how many of you are doing the research or how many of you have completed your research? आप में से कितने लोग डॉक्टरेट है? Okay, no issue. So we will also discuss
how to insert the citation, and which will help you to generate the bibliography. That is called as the reference list at the end. So these are the 4 things that we are going to discuss in our today's session. And all these 4 come under a heading called as reference tab. Okay. So in the today's sessions, what are the things that we are going to discuss? How to create the table of figures, the creating a table of content, then creating the index, and finally citation and bibliography. So let's start one by one. Creating a table of figures. So it is nothing but simply hyperlink that I have given. So what are the advantages of list of figures using the MS Word? One can generate the list of figures table very easily. That is the first advantage. One don't need to regenerate the list if any new figure has been added or deleted at any stage of your writing the books or thesis. No issue. Okay. And the last one is page numbers and other details can be updated if the figures have been moved from one location to another. Okay. So these are the basic 3 advantages when you are creating the list of figures automatically using the MS Word. So let's see. We will see. Suppose these are some of the content, and then you have inserted this figure. Okay. Then what you need to do? You need to name this figure. That is caption. You need to give the caption for this figure. So for that purpose, what you need to do? Select the insert caption from the reference tab. Of course, we will discuss all these things during our practical session also. So you need to select the insert caption from your reference tab. Okay. And then here you need to specify the caption for that figure. If it is figure, you may also give the figure or image 1, image 2, that depends upon you. It means this is nothing but what? It's simply a label. You are able to change the label also. Okay. Finally, you need to click on the OK button, nothing else. So it will automatically display the figure 1. It's a tulip. Similarly, you may insert a footnote or references for this one. So for example, assume that you have copied this particular image from a specific website. So in that case, you can also able to do the footnote. So www.flower.com, nothing else. Similarly, insert the caption for the other figure and go to the top of new page and write the heading called as list of figure in the center. Okay. And finally, from the reference tab, select insert tables of figure and automatically see what happens. Then it will ask you in which manner you want to show you, whether like this, like this, like this. And finally, click on the OK button. So you will get what? A list of figures. Okay. Now we will do all these things in a practical session. चलिए देखते हैं यहाँ पे. Assume that this is your figure number 3 right now. ये आपका figure number 1, ये आपका figure number 2 है फिलहाल 1 मिनट. और मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ और यहाँ पे एक फिगर में इंसर्ट कर रहा हूँ. इंसर्ट पिक्चर. Okay, so select the path from where you would like to load it. Load down. Then folder Lal Bahadur Shastri. Suppose this is the one image that I would like to insert. Desert. Okay, you can resize it as per your requirement. And then now observe carefully. It's a figure number 2 only. In the reference tab, select what? Insert caption. So by default, figure 2 आ रहा है यहाँ पे. मैं लिख रहा हूँ heading desert. Okay, and then okay. So this is what your figure number 2. And now, एक मिनट ये कर मैंने मैन्युअली किया था ये. Now, if I am moving from one location to another, let's see, or before that, first of all, create the table of figures. At the beginning, Control Enter to make what? New page, and give the heading list of figures. Make it enter. Left alignment, and now reference में गए.
यहाँ पे व्हाट इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। ऑब्जर्व दैट क्या दिखा रहा है आपको, आपके इसमें जितने भी पिक्चर है वो सब आपको दिखा रहा है, टुलिप एंड डेजर्ट। देखो प्लीज रिमेंबर, ये हमने यहाँ पे क्या किया गया, ये मैन्युअली दिया हमने, इसलिए आपको नहीं दिखा रहा। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, एंटर एंड देन अगेन इंसर्ट कैप्शन फिगर 3 ओके। नाउ लेट्स सी, हमने और एक पिक्चर इंसर्ट की है, तो ये अपडेट हुआ है कि यहाँ पे नहीं, अपने आप अपडेट नहीं होगा, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट द टेबल, अपडेट द एंटायर टेबल एंड नाउ ऑब्जर्व पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 3 दोनों एक ही पेज पे है। सपोज अगर मैं पेज चेंज करता हूं, इसका कंट्रोल एंटर मार रहा हूं, देखिए टोटल मेरे इसमें कितने पेजेस में, यहाँ पे बॉटम में स्टेटस बार में 4 पेजेस आ गया। नाउ अगेन मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं पूरा, अपडेट द टेबल एंड नाउ ऑब्जर्व द पेज नंबर। साइज थोड़ी बड़ी कर देता हूं ताकि आप, इज इट क्लियर? यस सर। यस। तो मतलब इससे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, अगर आप कितने भी बीच में तो यहाँ पे अगर मैं और एक कोई इंसर्ट करता हूं तो देयर इज नो इश्यू, यू डोंट नीड टू rewrite all the figure number one by one. Assume there were, suppose if you are students of zoology and botany and you may need thousands of hundreds of what the picture, okay, so in that case, and if later on if you forget to insert any one of the image anywhere in the middle or at the beginning, you don't need to renumber all the numbers one by one manually. Using this technique you will be able to update your list of figures very easily. Okay, this part any doubt किसी को भी? सर वो टेबल कैसे क्रिएट किए हैं, लिस्ट ऑफ फिगर, एक बार फिर से। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, इसको निकाल रहा हूँ यहाँ से, लिस्ट ऑफ फिगर मैंने हेडिंग दिया टॉप में, रेफरेंसेस में गए, ओके, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है इंसर्ट टेबल्स ऑफ फिगर। अच्छा ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पे हाइपरलिंक दिखाना है क्या, तो मुझे हाइपरलिंक फॉर्म में नहीं चाहिए, नॉर्मल फॉर्म में चाहिए, तो मैंने उसको डिसेलेक्ट किया एंड देन ओके किया, दैट्स ऑल, खत्म। ओके। अब अज्यूम करते हैं कि ये पेज मैंने सपोज फिर से डिलीट कर दिया, अब मैं रिमूव कर रहा हूँ, सपोज ये पेज देखिए, अभी मेरे इसमें कितने पेजेस है, बॉटम में देखिए टोटल कितने पेजेस है, यहाँ पे 3 है, राइट, स्टेटस बार में। यस। लेकिन मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, मैंने चेंजेस किया तो मुझे अपडेट भी करना पड़ेगा इसको। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर से रेफरेंस में जाऊंगा, यहाँ पे अपडेट टेबल करके ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, खत्म। देखिए पेज नंबर अपने आप क्या हो गया, वहां पे पेज नंबर 3 हो गया अपने आप। जी सर, थैंक यू। ओके, तो दिस इज फॉर व्हाट, क्रिएटिंग अ फिगर, मतलब ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई बुक लिख रहे होंगे तो मेक द हैबिट ऑफ दिस, मतलब इंसर्टिंग द कैप्शन ऑटोमेटिकली, डोंट एंटर इट मैन्युअली। अगर आप मैन्युअली एंटर करते होंगे तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होगा, प्लीज रिमेंबर। ओके, आपको यूजिंग दिस टेक्निक, इस कैप्शन के थ्रू ही आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। नाउ ये कोई जरूरी नहीं कि फिगर 1 फिगर 2 मतलब फिगर ही कैप्शन रहना चाहिए, आप कोई भी कैप्शन वहां पे दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ, इंसर्ट कैप्शन, बाय डिफॉल्ट लेबल क्या है, यहाँ पे फिगर है, तो मैं यहाँ पे कुछ और भी दे सकता हूँ। अगर इक्वेशन होगा तो इक्वेशन दे सकते हैं, आप टेबल होगा तो टेबल दे सकते हैं, या फिर न्यू लेबल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इमेज। ओके एंड देन ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इमेज 1, इमेज 2 एंड सो ऑन। जब भी आप इंसर्ट करेंगे वहां पे क्या आएगा, भी इमेज, मतलब इमेज नाम का एक नया लेबल हमने बनाया है। आप चाहे तो फिगर लेना है तो फिगर लो, इमेज लेना होगा तो इमेज लो, या फिर शॉर्टकट में आप या 5G भी लिखते हैं बहुत सारे लोग, तो उस तरह का भी आप क्या कर सकते हैं, खुद का एक नया लेबल वहां पे बना सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। Okay, thank you. So this is about what, the part number 1. Now back. Now creating the table of contents. How to create the table of content? These are the things that we are going to discuss. So सभी ये hyperlink से ही किया हुआ है। मैं डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, चैप्टर 1 लिखा है, देन यहाँ पे 1.1, 1.11, these are what your heading, these are your sub headings, right?
Then this is your again chapter 2, again this is heading and these are what सब headings. तो इसको कैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए बहुत सिंपल है, सिलेक्ट कर लीजिए हेडिंग आपका एंड देन यहाँ पे देखिए स्टाइल, ये क्या आपका स्टाइल है, स्टाइल पे मैंने दिया हेडिंग 1. ओके, आप सेंटर करना है सेंटर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. देन ये 1.1 को मैं दे रहा हूं हेडिंग 2. देन 1.1.1 इसको मैं दे रहा हूं हेडिंग नंबर 3. ओके, सिमिलरली ऐसे जितने भी आपके हेडिंग होंगे ये किस में आएगा? अभी मुझे बताइए चैप्टर 2 कहां पे आएगा, हेडिंग 1 की हेडिंग 2 में? हेडिंग 1 सर. गुड. देन 2.1 हेडिंग 2. heading 2, good. And what about 2.2? Heading Heading 3. हेडिंग 2. Heading 2, right? Okay, heading 2. Okay, that's correct. 2, not 3. Why? Because it is not a 2.2.1. Okay, it is not a sub heading नहीं है, एक ही लेवल पे, ये दोनों एक ही लेवल पे है. तो हेडिंग 2 दिया मैंने. ओके, तो इस तरह से आपके जितने भी चैप्टर्स है हर एक के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे हेडिंग दे दी है. एंड फाइनली एट द टॉप फिर से आप हेडिंग देंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स. कंट्रोल एंटर से ब्लैंक कर दिया आपने और यहाँ पे रेफरेंसेस में गए. देखिए यहाँ पे क्या है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स या फिर अपडेट टेबल. फिलहाल टेबल ऑफ कंटेंट मैं क्लिक कर रहा हूँ. कौन से फॉर्मेट में चाहिए वो बताइए, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड सो ऑन फॉर्मेट. तो देख लीजिए यहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पेज नंबर के साथ आ रहा है आपके पास 1.1. ये 1.1.1 अंदर है इसलिए अंदर में आ गया, राइट. देन यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, हाइपरलिंक भी क्रिएट किया है. देखो मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, डायरेक्टली अपने आप प्लेगरिज्म पे चले जाएगा. दैट इज वन मोर एडवांटेज. Not only it is giving the table of content, but you are also able to generate what? You are also able to generate what? The link to each part. assume करो कि आपके thousands suppose assume करें कि 200 pages पे आपने लिखे हैं, तो directly jumping from heading, algorithm नाम के heading पे मुझे directly jump करना है तो manually अगर करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, scroll करते करना पड़ेगा one by one, which is a very difficult task. For example 2.1 पे भी जाना है, पेज नंबर 3 में, no doubt using control G you can jump, but using control G से क्या होगा, पेज नंबर 3 पे जाएगा लेकिन exactly 2.1 पे जाएगा क्या, नहीं. ठीक है, तो using this hyperlink you will be able to jump from one location to another very easily. For example I have selected here communication. Clear this part? Now assume कि मैंने यहाँ पे कुछ changes किए. Suppose ये part मेरा next page पे गया है. Okay, and now what I need to do, I need to update the table. देखिए यहाँ पे अपने आप आ जाएगा ऑप्शन update table, update entire table, and now observe here the page number. This part is clear? सर ये टेबल कहाँ पे शो होती है, मतलब चैप्टर के बाद या लास्ट पेज पे? बिल्कुल नहीं मैडम, ये आपको क्या करना है, आपको कहाँ पे चाहिए, एट द बिगनिंग चाहिए. तो हमने क्या किया, देखिए मैं फिर से बात कर रहा हूँ. यहाँ पे स्टार्टिंग में ये सब था क्या, मैंने इसमें नहीं था. देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे पहले एक ब्लैंक पेज क्रिएट किया मैंने. तो हाउ आई हैव क्रिएटेड दैट ब्लैंक पेज, आई एम प्रेसिंग कंट्रोल एंटर. देखिए टोटल नंबर ऑफ पेजेस फिलहाल कितने हैं, 3 पेजेस, राइट. हियर आई एम प्रेसिंग कंट्रोल एंटर एट द बिगनिंग and then I am placing the cursor on page number 1. अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ heading table of contents. Okay, thank you. Okay, and here what I need to do now, table of content and then enter. That's all. आपको table of content लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, देखिए heading यहाँ पे अपने आप आ रहा है. जी सर. Okay. Thank you. Okay. सर एक So now any डाउट है हाँ कि सर जैसे अगर हम कोई हेडिंग को चेंज करते हैं अपने टेक्स्ट में. हाँ देखिए अभी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा था, मैं ऑटोमेशन की जगह सपोज ऑटोमेशन की जगह कुछ और वर्ड लेता हूँ यहाँ पे, ऑटोमेटिक करके दे रहा हूँ, अज्यूम करते हैं. ओके, कोई इश्यू नहीं है यहाँ तक, जी चलेगा. जी. ओके, आपको करना क्या है, लास्ट में अपडेट टेबल करना है बस. अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमेटिक हो गया.
और सर अगर किसी हेडिंग के अंदर जैसे कोई बदलाव करते हैं, जैसे 1.1 है, नया आप ऐड कर रहे हो, ओके ओके ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि ये सपोज मैं इसको हेडिंग दे रहा हूँ 1.1.2, ओके, और इसको मैं सपोज दे रहा हूँ कंप्यूटेशनल सिस्टम, जी ठीक है। इसे देखिए याद रखिए, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्ट करके मुझे स्टाइल में बताना जरूरी है, अगर आपने नहीं बताया तो नहीं आएगा। हाँ सर, वही चीज जानना चाह रहा कैसे इसको। हाँ हाँ वही, फिर से देखिए, तो ये कौन सा स्टाइल है आपका, स्टाइल हेडिंग 2 है कि हेडिंग 3 है, ये बताइए। ये 3 है सर। हेडिंग 3 3 है, ओके गुड, ओके 3 है ये अपना। अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आइए वापस और यहाँ पे फिर से अपडेट टेबल, जी देखिए अपने आप आ गया यहाँ पे, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है, हाइपरलिंक का, जी क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप बहुत मतलब बुक लिखते हैं मतलब काफी बड़ी, और बाद में आपको लगा कि कहीं पे कुछ अपडेट करना है, चेंजेस करना है, तो यूजिंग हाइपरलिंक से आप उस पोजीशन पे जल्दी जाके वहां पे फिर आपको जो भी मॉडिफाई करना है, एडिटिंग करना है, वहां पे आप कर सकते हैं। ओके, दिस पार्ट इज क्लियर? जी सर, बिल्कुल। एनी मोर डाउट्स? नो सर। चलो थैंक यू। Clear, sir. ओके थैंक यू। नाउ यस यस मैडम। Sir, I have created the same table parallelly, but Okay. hyperlink not generated. Okay. चलो गुड, यू आर ट्राइंग योरसेल्फ आल्सो। सी व्हाट यू नीड टू डू, आपने कौन सा किस फॉर्म का टेबल सिलेक्ट किया ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से यहाँ पे पूरा रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिले थे, देखिए मैडम, रेफरेंसेस में, टेबल ऑफ कंटेंट्स में, देखिए ये पहला है जनरल, ओके, देन यहाँ पे एक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिए थे, नंबर 1 लिए थे, देखिए वहां पे नीचे में पढ़िए थोड़ा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक मिलेगा। अगर आपने नीचे के लिए तो आपको हाइपरलिंक नहीं मिलेंगे। Okay, sir. Okay, thank you. So this is about your table of contents. Okay. Now we will move toward the creating the index. दोनों क्लियर ना, पहले दोनों, किसी को कोई डाउट नहीं अभी? No, sir. Okay, now No we will problem, move to the सर creating index. सब हेडिंग कैसे क्रिएट करते हैं मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। विदिन अ हेडिंग इफ इट इज 1.1 इट इज Okay. Okay. One minute. Let me close it. Creating table of contents. देखिए कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अपन चलते हैं यहाँ पे, मैं देखिए मैडम, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे मैंने एक नया हेडिंग दे रहा हूँ, सपोज 2.2, ओके, और मैं नाम दे रहा हूँ सपोज इसको इंफॉर्मेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर मैडम? मैंने हेडिंग दी है, मैंने हेडिंग दी, लेकिन उसको मैंने कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया। याद रखना, आपको स्टाइल अप्लाई करना जरूरी है। ये हेडिंग 1 का आपने चैप्टर के लिए, आपने क्या किया, चैप्टर के लिए हेडिंग दिए थे, राइट? फाइन। हेडिंग 2 इसके लिए देना आपको, तो हेडिंग 2 आपने दे दिया, इसको अभी देखिए, इसका हमने स्टाइल दे दिए। सपोज ये मुझे इसका इनर पार्ट करना है, तो मुझे क्या करना है, मतलब 2.2 का अगर ये मुझे इनर पार्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 2.2.1, राइट। अब मुझे इसका मुझे स्टाइल क्या देना पड़ेगा, हेडिंग 3 देना पड़ेगा। Okay. इनर वाला पार्ट है ना? Yeah. Clear. We have to move from heading 1 to 2 to 3 depending on how many. Obviously. Now you can also create your own heading also. Okay, for that purpose, Right. Create style. यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने खुद का भी स्टाइल बना सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फॉन्ट स्टाइल क्या है मेरा, यहाँ पे जो भी मैंने बताया, यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक वगैरह बताया यहाँ पे, तो वही स्टाइल आएगा। यहाँ पे अपना खुद का क्रिएट स्टाइल आप बना सकते हो यहाँ पे। Yes, sir. Got it. Okay, thank you. Sir. Okay, welcome, madam. Now we will moving toward the creating index. Okay, so click on this. So now, what is the advantage of index? Once again, let me. Anyone? आपने देखे होंगे इंडेक्सेस जनरली बुक के एंड में रहता है। Yes, sir. So what is the advantage of that indexes?
It tells the keyword, sir, and on which page the keyword is there. That's good. Okay. So now see what I am going to do here. ये algorithm मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मुझे चाहिए कि ये कीवर्ड में जाना चाहिए, तो मैं रेफरेंस में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मार्क एंट्री। मार्क एंट्री थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 ऑलरेडी एंट्री कर चुका हूँ, इसलिए आपको कुछ अलग सा दिखेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। सो मैंने क्लिक किया तो एल्गोरिथम मेन एंट्री दिया मैंने, ओके मार्क करो। मार्क करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है मालूम है आप लोगों को? दिस सिंबल इट इज कॉल्ड एज पैराग्राफ। मतलब हमने जब भी हम एंटर मारते हैं तो ये सिंबल अपने आप वहां पे आ जाता है। देखिए ये सिंबल जो इंडिकेट कर रहा है इट्स अ सिंबल ऑफ एंटर सिंबल। अगर आपको रिमूव करना है तो क्या करना है, होम में जाना है और ये सिंबल यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसको क्लिक कर दीजिए तो अपने आप निकल जाएगा। मतलब अपने को सपोज ये मालूम करना है कि मुझे किसने कहाँ एंटर मारा है, तो हम यहाँ से इजीली मालूम कर सकते हैं। ओके, ये पार्ट क्लियर हो गया यहाँ तक? सर ये जो सिंबल है ये स्पेस को भी शो करता है क्या? नो मैडम, ओनली फॉर एंटर। एंटर की कहाँ काम आ रहे। जनरली देखिए क्यों लगता है हमको, फॉर एग्जांपल जैसे ये अपन जो कंटिन्यूस मैटर लिखते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे लास्ट में जिनको कंप्यूटर के बारे में मालूम नहीं रहता है तो जनरली वो क्या करते हैं यहाँ पे, सपोज ये जस्टिफाइड नहीं है मैंने इसको ऐसे दिया, तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे एंटर मार देते हैं या फिर बीच में ऐसे स्पेसेस बढ़ा के। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैंने एंटर मार दिया, तो अब मैं अगर यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा तो होगा क्या प्रॉपरली? नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, एंटर मार दिए थे। तो कभी भी याद रखना, जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हो तो एंटर कहीं पे भी नहीं आना चाहिए विद इन दैट एंटायर पैराग्राफ। तो अगर आपको कुछ देखना है कि अपने एंटर कहाँ पे मारे है तो उस समय ये सिंबल आपके काम में आता है मैडम। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एकदम एंड में है, यहाँ पे भी है और एकदम एंड में है, नॉट इन द मिडल में कहीं पे भी नहीं है। ओके, दैट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ दिस पार्ट। ओके, तो इस तरह से हमने पहले इसको क्या किया, मार्क किए। नाउ सिमिलरली मुझे लगता है कि ये स्टोरेज नाम का जो सिंबल वर्ड है इसको भी मुझे क्या करना है, मार्क करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, रेफरेंसेस में गया, मार्क एंट्री, मार्क कर दिए। ओके, जैसे मैंने कहा था कि ये सिंबल आते रहेगा, कोई इशू नहीं। और भी जितने भी वर्ड से आपको लेने का होगा वो सब सिलेक्ट करते चलिए। यहाँ से डिजाइन, मुझे लगता है डिजाइन भी चाहिए तो मैंने डिजाइन को भी सिलेक्ट किया, रेफरेंसेस में गया, मार्क एंट्री किया, डिजाइन। ओके, क्लोज। तो इस तरह से आपके बुक में जहां जहां आपको लगता होगा कि वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उन सबको आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा भी मैंने कुछ ऑलरेडी सिलेक्ट किए थे पहले से ही। अब लास्ट में मुझे क्या करना है, देखिए अब जनरली इंडेक्स कहाँ पे रहता है, एंड में रहता है। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने सेकंड पेज में भी कुछ इंडेक्स किए थे। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ हेडिंग इंडेक्स। ओके, ऑलरेडी दिया है, ओके कोई इशू नहीं है। एंड देन लेफ्ट साइड में रेफरेंसेस में देखिए यहाँ पे क्या है ऑप्शन, इंसर्ट इंडेक्स। ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं तो दिखा रहा है वो मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितने कॉलम में दिखाना है, 2 कॉलम में दिखाना है कि 1 कॉलम में दिखाना है कि 3 कॉलम में दिखाना है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिया है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, ओके कर रहा हूं मैं, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे क्या है, 2 कॉलम में आ गया ये पार्ट। क्लियर हो गया ये पार्ट? अब मुझे लगा कि लेटर ऑन कि नहीं मुझे एक ही पेज सिंगल कॉलम में चाहिए, तो मुझे क्या करना है, पेज लेआउट में जाना पड़ेगा। पेज लेआउट में यहाँ पे कॉलम नाम का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 1 चाहिए कॉलम की, 2 कॉलम चाहिए, तो 1 चाहिए तो 1। ओके, तो देखिए फिर से मैंने क्या किया, हमने क्या किया, फिर से एक बार थोड़ा ध्यान दो, जो जो वर्ड हमको इंक्लूड करना है उसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मुझे चाहिए यहाँ पे सपोज एक्सप्रेशन, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड रेफरेंस में गया। यहाँ पे मार्क मुझे क्या करना है, पहले मार्क एंट्री करना है, मार्क एंट्री कर दो, खत्म। ओके, देन इस तरह से आपके जितने भी वर्ड है उन सबको सिलेक्ट मार्क करते चलो और एट द एंड, ओके एट द एंड आपको क्या करना है, इंसर्ट व्हाट, अपडेट। यहाँ पे फिलहाल भी हमने एक और ऐड किए, तो यहाँ पे क्या गया, अपने आप अपडेट आ गया। अपडेट पे क्लिक कीजिए। नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा है, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे हमने 2 बताया, इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 में आ रहा है। आपको लगा कि बाद में आपको एक ही इसमें चाहिए तो आप पेज लेआउट में जाइए, नंबर ऑफ कॉलम बताइए कितना, 1 है तो 1 सिलेक्ट कीजिए। पहले एक मिनट, सॉरी
page layout, number of column 1. That's all. Any doubts? सर एक बार अगर फिर से बताते। Next Hello. question. Sir, Yes. sir, let me also club my curiosity. देखिए जब हम इंडेक्स बनाते हैं ना तो जो एक कीवर्ड होता है तो वी वांट के पूरे डॉक्यूमेंट में वो कीवर्ड सब जगह जहाँ पे भी उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन है वो इंडेक्स में सब रजिस्टर हो जाए। अपने आप हो जाए। Simple command which can help you. Yes. That's good. Okay. So now let's see. मैं फिर से एक बार इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने जब भी एल्गोरिथम वर्ड एक यूज किए थे, मैं फिर से यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिख रहा हूँ। ओके, एल्गोरिथम की जगह सपोज टेक्नोलॉजी, अभी तक हमने टेक्नोलॉजी वर्ड यूज नहीं किया तो मैं टेक्नोलॉजी का वर्ड यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे भी एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी। तो देखिए आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, देन रेफरेंसेस में गए, मार्क एंट्री। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्क ऑल करके, दिख रहा है मैडम आपको? यस सर। हेलो, यस। हाँ, आप यहाँ पे आप पेज नेम भी बता सकते हैं कितने पेज में चाहिए वो। ओके। तो ऑब्वियसली हमको फिलहाल हमारे इसमें 3 पेज है तो मैं 1 to 3 पेजेस बता रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको मार्क भी कर दिया। अगर मुझे बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकता हूँ, इटैलिक करना है तो इटैलिक भी कर सकता हूँ। ओके, मैंने मार्क कर दिया। ओके, द बुक मार्क bookmark name is not a valid. Okay, let me check it, madam. Just a moment. No issue, sir. Okay, I have closed it. Mark call मैंने वहां पे किया था। देखते हैं यहाँ पे लाट में जा रहे हैं अभी अपन। फिर से ये मैं पैराग्राफ का जो सिंबल आ रहा था उसको निकाल रहा हूँ। इंडेक्स में गए हम, रेफरेंसेस में गए, देन इंसर्ट इंडेक्स। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, मुझे 1 ही चाहिए तो ओके मैंने 1 दिया। देन ओके, डू यू वांट टू रिप्लेस? यस। सो सी मैडम यहाँ पे कम्युनिकेशन 2 बार है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखिए मैडम, ये आपका जी राइट, पेज नंबर 1 and 2। फाइन। ओके, तो मतलब जितने भी जगह वो वर्ड होगा वो सब वहां पे अपने आप मार्क ऑल करना है, तो सिंपली मार्क ऑल पे करना है, बाकी फिर नहीं करना है। डन, क्लियर। ओके, ओके, थैंक यू। एनी मोर डाउट रिलेटेड टू दिस? Hello sir. Yes, please. Can we select all these words all together? All together in the sense? In we are inserting index no every time, selecting one word and doing that particular thing for that. Yes, obviously, because you need to select only one word at a time, not one more than one. Okay. Okay, thank you. Any more? So this is very much useful. Okay. Hello sir. Hello sir. Yes. Sir, how to insert abbreviation in the word? Abbreviation, short form and the full form along with both together. Automatically, अच्छा वो find and replace से आप कर सकते हो। उसके लिए ठीक है, मैं बता देता हूँ, वो भी बता देंगे। फिलहाल अपना जो रेफरेंस टैब है उसके बारे में अपन डिस्कस करें अभी। Okay. List of abbreviation. Yeah, definitely. Abbreviation को automatically आप enlarge कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको एक मोमेंट। फिलहाल अपन रेफरेंस टैब क्लोज कर लेते हैं एक बार। उसको ऑटो रिप्लेस बोलते हैं। Then now we are going to discuss about the citation and bibliography. So what is citation? Anyone? Quoting the reference of the work which we are borrowing from many other sources. That's good. Okay. So whenever you are copying certain information of another author, it is always better, not only always better, you must make the habit of this to give the credit to them. Okay. And that is what we are calling what citation. Okay. So let's see.
So what is the basic difference between a reference and bibliography? Anyone? Bibliography is the list of references. Bibliography is the list of references. Okay. It can be alphabetically. Bibliography is alphabetically in order, but whereas references may be numbered. Okay. Bibliography may be used or not used. Means that may be used in the content. Good. Okay. But references will be used. Okay. So this is the basic difference. That's good. Okay. So simply we can say that reference is what? It is a subset of your bibliography in mathematical terms. Okay. You may call it a subset of what? Bibliography. So work cited or reference list. Okay. So there are various types of reference list. We will discuss all of them one by one in a moment. So what is bibliography? A bibliography is simply a list of all the sources, including references and other for background or for further reading. Okay. And what is annotated bibliography? Yes, anyone? Suppose आपने कोई बुक पढ़ी है, वो बुक क्यों पढ़ी है? उसका कभी हम कुछ बारे में बताते हैं क्या? उस बुक में क्या स्पेशलिटी हम कहीं बताते हैं क्या? Generally, हाँ, तो sometimes when you do, that is called as what? Annotated bibliography. Annotated bibliography, right? Okay, that is what you are calling annotated bibliography. Whenever you are specifying certain things, whatever the good thing that you have observed in that particular book, so that others should read it. Okay, usually क्या होता है कि हम bibliography की lead देते हैं, लेकिन वो bibliography उसका बेसिक किस चीज के लिए हमको यूज करना है वो कहीं पे भी जनरली मेंशन नहीं रहता है, ठीक है? और जब हम उसको मेंशन करते हैं, yes, this please. annotation is also done usually in the reference itself. If you give a footnote or if you give an endnote, the annotation it carries. No, here we are giving a basically detailed description, madam. Generally, we provide a detailed description. Then you have to, then it has to be a different file altogether. It has to be a different set of pages. Generally, we write it at the end. Okay. If you just make a summary. Can we call annotated bibliography as a review? Pardon, madam? Can we call annotated bibliography as a review of a book or a paper? No, it's called annotated only. Not exactly. Annotated bibliography. It is simply a summary, short summary of what are the important content that you are reading. Okay. Okay, thank you. So now what are the different styles? We have a APA, that is American Psychological Association, then MLA, then Turbian, Chicago, IEEE for the science and electronics student, then ISO. There are so many styles that are available in the references, for the references. Okay, so you should always use, depending upon your subject or your university or your guide ask you to do it. Okay, so usually when you are talking about APA, it is generally used by the education science or in a scientific topic like behavioral science, psychology, or continuity science or neuroscience. For social science, they generally prefer what? APA. MLAs are generally used by the literature students, languages or liberal arts, etc. And IEEE generally by computer science and electronics and electrical subjects. And when you are talking about Chicago and Turbian, it is generally used the business management students. Now, question arises, how to remember a different kinds of citation mechanism. Okay, for example, when you are talking about the books, if you are following certain books, you need to write something like this. If it is chapters in books, you need to follow this kind of style. If it is e-book, you need to follow this style. If it is general article and so on, if it is e-journal from the internet, then if it is conference paper, suppose आपने किसी conference paper का किसी का citation लेना चाहते तो उसको कैसे लिखना है? So it is very difficult to remember all this what you can say that mechanism. Okay, if it is for newspaper से आप कुछ ले रहे हैं तो उसका style कैसे रहेगा? Technical report होगा तो उसका कैसे रहेगा? Patent से अगर आप कुछ ले रहे हैं, किसी पेटेंट बुक में से अगर आप रेफरेंसेस ले रहे होंगे तो उसका स्टाइल अलग है, देन थीसिस एंड डिसर्टेशन का स्टाइल अलग है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द स्टाइल टू बी फॉलो while writing the citations in a books or whenever you are writing certain research papers. So question arises now, why MS Word for bibliography generation? Okay, so apart from that bibliography, we have a n number of tools that using that one also you will be able to create what? The citation and bibliography. The one is what? Bib, and second one is Easy Bib. But we are following here MS Word. Let's see why. Now assume how to give a bibliography. Assume करते हैं कि आपने वर्ड एज इट इज किसी स्पेसिफिक बुक से आपने कॉपी किए हैं, ठीक है? अब आपको क्या करना है?
you need to give the insert citation from reference tab only. देखिए यहाँ पे reference tab है, ये insert citation है, add new source. थोड़ा enlarged फॉर्म में लिखा है, बाकी कुछ नहीं है, सेम है, रेफरेंस के अंदर insert citation, add new source. तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, टाइप्स ऑफ बुक क्या है. तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ सोर्स बताना है. प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया था 11-12 पेटेंट वेटेंट, देन आपका जनरल, न्यूज़पेपर, ई बुक, ये सब आपको यहाँ पे दिखेंगे. तो आपको टाइप ऑफ सोर्स सिलेक्ट करना है. देन यू नीड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द ऑथर, देन टाइटल ऑफ द बुक, देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन, then the city from which this particular book has been published, then the name of the publisher, then ISBN number. Apart from that, you can also specify other details also. Okay, that will be discussed during our practical session. And finally, click on the OK button. Okay, so what will happen? See, जैसे ही हम ये सब करेंगे तो क्या होगा. तो अपने आप देखिए यहाँ पे क्या आया, the name of the author and the year of publication. The name of the author and the year of publication. Clear this part? और ये कौन से फॉर्मेट में है, ISO 690. 10 सेकंड. इसके बाद आप और कुछ लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ आपने और लिखा है. लिखने के बाद आप फिर से कुछ साइटेशन देना चाहते हैं, तो फिर से सेम मेथड. अब आप बता रहे हैं कि ऑथर का नाम सपोज हीरा एंड गुप्ता, टाइटल ऑफ द बुक, ऑपरेशन रिसर्च एंड सो ऑन. ओके, एंड फाइनली सी हाउ इट इज अपीयरिंग. क्या आ रहा है यहाँ पे, the name of the author followed by the year of publication. Okay, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No sir. Yeah. Okay. Now see what is the advantage of this. हमने यहाँ पे एक मेथड फॉलो की है ISO. ना अज्यूम करते हैं कि आपने अपना पेपर पब्लिश किए किसी ऐसे कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमको वो फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमको MLA फॉर्मेट चाहिए. अगर आप इस तरह से अगर मैन्युअली करते हैं तो थिंक अबाउट इट. देयर वेयर सपोज अज्यूम 50 अपने रेफरेंसेस दिए, तो 50 रेफरेंसेस को चेंज करना इजी टास्क मैन्युअली, इट्स वेरी डिफिकल्ट. ओके, बट यूजिंग दिस टेक्निक, अगर आपने एक बार साइटेशन टेक्निक बता दिए तो उसके बाद आप जो फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. Then add the content and the book or website details after the content in the same manner that has been described earlier. Okay, and finally at the end what you need to do, reference book यहाँ पे हमने heading दे दी है, रेफरेंस बुक करके हमने हेडिंग दे दिया. एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टाइल, हम स्टाइल बता रहे हैं, तो कौन से स्टाइल में आपको चाहिए, APA, चिकागो, एंड देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल. तो सिलेक्ट वन ऑफ देम एंड प्रेस ओके. सो हियर आई हैव सिलेक्टेड व्हाट, APA. देखो ओरिजिनल हमने जो किए थे ISO में किए थे. प्लीज रिमेंबर, हमने ISO में स्टाइल में हमने पूरे सिलेक्ट किए थे. अभी हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, APA. तो अपने आप फिर वो पूछ रहा है आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, बिब्लियोग्राफी फॉर्म में चाहिए कि वर्क साइटेड. तो हमने बताया बिब्लियोग्राफी. देखिए ऑर्डर देखिए, इट विल कम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड इट इज शोइंग द एंटायर डिटेल ऑफ दैट बुक. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, खाली गुप्ता 1980, लेकिन यहाँ पे बताया क्या ऑथर, बुक, टाइटल ऑफ द बुक बता रहा है कि यहाँ पे साइटेशन में नहीं, वो सब कहाँ पे आएगा आपका, बिब्लियोग्राफी में आएगा. फॉर एग्जांपल दिस इज द कंप्लीट डिटेल ऑफ दैट बुक. So all this thing will be listed automatically at the end. Is it clear? Excuse me, स्टाइल किसमें आया? Pardon? ये स्टाइल जो हमने सेलेक्ट की है, ये कहाँ पे जाके आएगा रेफरेंसेस में? कहाँ से आएगा, देखिए मैडम फिर से जी, ये रेफरेंसेस में देखिए, ये रेफरेंस है, रेफरेंस के अंदर यहाँ पे क्या स्टाइल है. अच्छा, ओके ओके. स्टाइल, हमने एक बार स्टाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, स्टाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे जी, स्टाइल के नीचे में. जी, तो स्टाइल पे नीचे में यहाँ पे आपको बिब्लियोग्राफी आ रहा है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे या तो बिब्लियोग्राफी चाहिए इस फॉर्म में चाहिए कि वर्क साइटेड फॉर्म में चाहिए. तो आपने जो भी मेथड सिलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपने बिब्लियोग्राफी सिलेक्ट की है, तो ये बिब्लियोग्राफी फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है. ओके जी जी, ओके, थैंक यू. ओके ओके. तो नाउ अगर आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे IEEE फॉर्मेट नहीं है बाय डिफॉल्ट. Please remember, if you are a science student, you won't find here the IEEE format by default. हेलो सर. एक नाम बोलिए. सर इन टेक्स्ट साइटेशन को नंबर्ड करके कैसे इसमें कर सकते हैं, नंबर्ड करके है ऑप्शन, नंबरिंग करके? हाँ, वो भी बताऊंगा मैं, वो सब आ जाएगा. एक बार मतलब फिलहाल अपने टाइल देख लेते हैं. एक बार आपने टाइल दी थी तो अपने आप को कैसे चेंज करने का मैं आपको सब बता दूंगा एक बार.
सर एक लास्ट क्वेरी थी, मैनुअली हमें इंटर करना होता है सारा कुछ, मैनुअली इंटर करना होगा हमें वर्ड फाइल में? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, सब ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक। बताऊंगा मैं आपको। मैनुअली खाली हमको एंट्री करनी है कि बुक के बारे में, टाइटल, हेडिंग वगैरह होगा, लेकिन सेंटेंस का रेफरेंस स्टाइल हमको बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएगा। कहाँ पे कोटेशन लेना है, कहाँ पे नहीं लेना, वो सब हमको बताने की जरूरत नहीं है। मैं इसी की बात कर रहा था, बुक की डिटेल हमें मैनुअली एंट्री करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली वो बुक की तो डिटेल करनी पड़ेगी ना आपको, लेकिन उसका स्टाइल जो है ना, उसका कोटेशन कहाँ पे आएगा, कॉमा कहाँ पे आएगा, वो सब हमको बताने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो अब नाउ कमिंग टू IEEE फॉर्मेट। प्लीज रिमेंबर IEEE फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको उसको स्पेशली ऐड ऑन करके ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो बाय डिफॉल्ट इज नॉट अवेलेबल, आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जो लिंक है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, और वहां से फिर आप इसको डाउनलोड करके आप अपने यूज कर सकते हैं। नाउ इसको इंस्टॉल कहाँ पे करना है? वहीं पे करना है जहाँ पे बाकी के आपके स्टाइल है। बाकी के स्टाइल मतलब MLA, APA जहां जहां है, वहीं पे आपको इसको अनजिप करना है, ठीक है। तो वो फोल्डर का नाम जनरली क्या रहता है? प्लीज रिमेंबर, सी प्रोग्राम फाइल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर ऑफिस 12 होगा तो ऑफिस 12, 13 होगा तो 13, जो भी होगा आपका पाथ। और फिर बिब्लियोग्राफी नाम का एक फोल्डर रहेगा, उसके अंदर में एक स्टाइल नाम का फोल्डर रहेगा, वहां पे जाके इसको अनजिप करना है। ओके, तब आपके आप लिस्ट में क्या जाएगा, अपने आप IEEE फॉर्मेट आ जाएगा ना। आप लोगों में से कुछ लोगों ने PhD की है, तो मुझे बताइए नंबर ऑफ पेजेस कितने चाहिए इन जनरल में PhD में? If there is any limit, or if there is any limit, 250 to 300. Okay, and how many references? लिमिट तो नहीं होती है, How many references? डिपेंड करता है। 250 in humanities, 250 In to general, 300. we are talking in general. Okay, please, we are talking in general. We are not talking about any specific subject. We are talking about in general. Okay, so madam saying 250. Yes, sir. What about you? What is your experience? Up to 300, not more than that. Okay, and what about the number of references? Sir, I can't commit, but let me say something. Up to 100, not more than that. Okay, Next okay. I don't think there is any limit, sir. I have seen 400 to 500 references in thesis. Okay. So I think there is no limit. Okay, there is no limit. So all of you are correct, but can you assume with having only 28 pages, a student got the PhD award, and there were only 2 references, and out of that, the first reference is self what? It's a self reference, and later on he got that, and later on he got the Nobel Prize. Only 2 reference. One is what? Self paper, and other one is of great John von Neumann, a person who has derived the storage concept in computer. Is known as what? John von Neumann. So only 2 references have been used by John P. Nash during his theory called as non-cooperative games. Okay, under the guidance of, and this Sir, just to share with you, it's well, he's a big man, but there have been lesser people I know of a student way back 20-30 years back. He got a PhD for a thesis he wrote in only 20 pages. Wow, that's really good, really good. Okay, so what is the important thing? Usually what we used to heard here is that कि भाई आपका मिनिमम 200-250 पेज रहना चाहिए. Okay, please remember, ये सब कोई जरूरी नहीं है. Most important is what we have written in those pages. If it is only because most of the time nowadays what is happening that everyone is asking you for review of literature, and review of literature itself consists of what? One third page of your entire thesis. 1/3 pages of your entire thesis is based on simply review of literature. Okay, so anyway, so this is also there. Then you need to remember some of the wrong referencing. What is the wrong referencing? कि हमने रेफर ही नहीं किया और फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं? साइट कर रहे हैं. ओके, या फिर ऐसा नाम बता रहे हैं कि ऐसी कोई बुक ही नहीं लिखी गई है और उसको हम रेफर कर रहे हैं. ओके, देन डुप्लीकेट रेफरेंसिंग बता रहे हैं, हम एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं. सो दैट इज आल्सो अवॉइडेड. Then tip for referencing has been given over here. Now most important here is that it should not be older than 5 to 6 years. Okay, if you are doing your research right now, say in 2020, so your references should be up to 2015 only. 2015 only, not before that. Especially about a science student. Sir, so if they are doing yes. Hello.
Sir, is Yes, this yes, true yes. of, no, this can't be true of humanities subjects. This could be true of Yeah. science subjects maybe. But Yeah, humanities that's why I'm saying that. That's why I said, madam, I said science, especially science. Okay. Okay, yeah. Especially when you are doing some science related work, it should not be older than 5 to 6 years. Even if it is for the humanities also, no doubt. Always try to refer the latest one, latest the contents. It might be possible that over a period of time, the number of researchers have done certain research work on a particular, say that particular person. Okay, great person. So in that case also, I will always suggest go to the latest one only rather than starting from the beginning itself. Okay. Then annotated bibliography. So see how to specify the annotated bibliography with example. We will see within a moment. For example, this is the one of the book, and followed by this is what a little bit description why you should refer this book. Okay, and these are some of the references book that I have used for my own purpose. Now we will go to a practical session of this one also. Now यहाँ तक कोई डाउट है क्या? Don't worry, we have 15 minutes more. That is more than sufficient. यहाँ तक किसी को कोई doubt? We will see practical approach of this. We will see the practical approach of citation and bibliography. Yes. I'm audible. Yes, yes, Sir, yes. do all these features available for online version also and in the same smoothness? Yes, it is available. With the same compatibility and all smoothness. Yes, 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 Okay. yes, yes, yes. Thank you. Okay. So I'm ending my slideshow. So now we will. Sir, one question. Yes, sir. Please. Yes, सर sir, रिगार्डिंग please. ह्यूमैनिटी से लैंग्वेज के सब्जेक्ट में कभी कभी क्या होता है कि एक ही बुक कई राइटर्स के द्वारा होती है जिसका ट्रांसलेशन या उसका एडिशन किया जाता है, तो क्या ऐसे बुक को Yes, yes, yes. रेफरेंस के रूप में नहीं 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 एडिट नहीं नहीं वो इसलिए बोल रहा हूँ रिपीटिंग मत करो, वही हमने वर्ड यूज किया वहाँ पे. डोंट यूज द रिपीटिशन ऑफ द सेम बुक. अच्छा रिपीटिशन नहीं समझ. अवॉइड इट. उसको अवॉइड करो, अवॉइड. ओके सर, थैंक Sir, ओके. sir, Yes, please. another question that I have, that like you have very well demonstrated all those things, but can you suggest some guide you. can also consult it later on, because your video may not be available to us after this session, so we just want that. Okay. No, I am providing the study material. I am providing study material. Yesterday also I have provided study material. I have given it to the. अच्छा कल का जो सेशन था उसका भी मैंने स्टडी मटेरियल ऑलरेडी दिया था, और आज का भी मैं स्टडी मटेरियल थोड़ी देर में आपको भेज दूंगा. Then it may be shared. Okay, thank you, sir. Okay. So now we will start with references. So assume कि मैं यहाँ से कुछ कॉपी कर रहा हूँ से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. This is a content, Wikipedia. मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से यहाँ तक. ओके, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ. रिमेंबर कि हमने यहाँ पे पेस्ट किया. ओके, उसके बाद फिर आपको जो भी सेटिंग मीटिंग करना है वो सेटिंग करते बैठेंगे, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. मैंने यहाँ पे कर्सर देखिए यहाँ पे एंड पे है और मैं जा रहा हूँ रेफरेंसेस में. ओके, देन इंसर्ट व्हाट साइटेशन करके एक ऑप्शन आ रहा है मुझे. मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ऐड न्यू सोर्स. बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे फॉर्मेट क्या है, मेरा स्टाइल क्या है बाय डिफॉल्ट, इट्स एपीए. हाँ, याद रखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है एपीए स्टाइल में दिखा रहा है. देन टाइप ऑफ सोर्स, वेदर इट इज बुक or book section or journal article or article in periodical report, then website, document from the website, and there are so many electronic source. ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको. फिल्म, किसी मूवी से आपने रेफरेंसेस ले रहे हैं या किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू का रेफरेंस बता रहे हैं आप, या फिर पेटेंट है या फिर कोई स्पेसिफिक केस है, एंड सो मेनी थिंग्स. देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर. सो हियर आई एम सिलेक्टिंग व्हाट अ बुक साइट. नाउ ऑथर है क्या, देखिए यहाँ पे. वन चीज पूछना चाह रहे थे सर, अगर जैसे कोई भी कॉलम इसमें ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल. जैसे बहुत सारे रेफरेंसेस में सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोड़ सकते, बिल्कुल छोड़ सकते. ठीक है. देन अब आपको चाहिए यहाँ पे ऑथर. देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑथर दिया है क्या, तो जनरली ऑथर कहाँ मिलता है आपको? लास्ट, बिल्कुल एंड में यहाँ पे.
फिलहाल ये क्या है, विकिपीडिया है, तो इट्स नॉट जनरलाइज पर्पस है, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑथर यहाँ पे नहीं है। अगर ऑथर दिया हुआ तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे देखिए नंबरिंग कुछ है क्या, नंबर 2 दिया है, देखिए नंबर 2 दिख रहा है, रेफरेंस नंबर 2, तो रेफरेंस नंबर 2 आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज योर रेफरेंस नंबर 2, तो यहाँ पे देखिए ऑथर का आपको नाम मिल गया यहाँ पे, ठीक है। देन आपको यहाँ पे बुक का भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो यहाँ से कॉपी कर लो आप। सर एक क्वेश्चन था। यस मैडम प्लीज। सर जब हम कहीं से भी कोई कंटेंट कॉपी करते हैं तो कई बार वो कॉपी नहीं होता है, तो फिर ऐसे में कोई प्रोसेस है क्या या कोई शॉर्ट की है? कॉपी नहीं होता है? हाँ, कई बार वो कॉपी नहीं होता वो है। या तो मतलब वो पीडीएफ फॉर्म में होगा इसलिए नहीं हो रहा होगा, बाकी कुछ नहीं है। अगर एडिटेबल फाइल होगा तो कभी भी कॉपी कर सकते हैं आप, नॉन एडिटेबल फाइल होगा तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्या करता है, इमेज फॉर्म में अपने पेपर को अपलोड करता है जेपीजी फॉर्मेट में, कल हमने बताया था आपको जेपीजी में कन्वर्ट कैसे करने का, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वर्ड मेरी जो फाइल है, मैं इसको क्या करूंगा, जेपीजी फॉर्मेट में क्या करूंगा, उसको अपलोड करूंगा। तो इस केस में क्या होता है कि आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। ओके ओके सर, ओके ठीक है। देन नेम ऑफ वेब पेज, तो नेम ऑफ वेब पेज क्या अपना फिलहाल विकिपीडिया, एंड नेम ऑफ वेबसाइट आप यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए वेबसाइट क्या हमारा en.wikipedia, ओके मैंने इसको कॉपी कर लिया। आप यूआरएल में भी वही रहेगा आपका। देन ईयर कौन से ईयर का है वो आप वो भी बता सकते हैं, तो आप मालूम कर सकते हैं कि कौन से ईयर का है। फिर से ये सब आपको बॉटम में मिलेगी, प्लीज इंफॉर्मेशन। देखिए दिस पेज वाज लास्ट एडिटेड ऑन व्हाट 2 अक्टूबर 2020, राइट, विद टाइम भी दिया है, बता रहा है यहाँ पे कि अपडेटेड लास्ट अपडेटेड कब का है ये। तो मैं ले रहा हूँ डेट, ईयर पूछ रहा है खाली 2020, मंथ अक्टूबर 10 एंड डे 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। 10 यहाँ पे देखिए शो ऑल बिब्लियोग्राफिक फील्ड्स, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आ रही है, एडिटर आ रहा है, प्रोड्यूसर नेम, प्रोडक्शन कंपनी वगैरह वगैरह वगैरह। अगर मुझे मालूम होगा तो मैं लिखूंगा, नहीं मालूम होगा तो मैं क्या करूंगा, उसको ब्लैंक करूंगा। फॉर एग्जांपल वर्जन क्या है, उसका शॉर्ट टाइटल क्या है, ओके अगर ये सब मुझे मालूम होगा तो मैं वहां पे मेंशन करूंगा, अदरवाइज मैं इसको ब्लैंक करूंगा। ओके एंड फाइनली ओके। देखिए यहाँ पे अपने आप क्या गया, ये डिटेल अपने आप आ गई यहाँ पे, ऑथर नेम एंड द ईयर ऑफ, ये कौन से फॉर्मेट में है, एपीए में है। दिस पार्ट इज क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। गुड, थैंक यू। सर एक डाउट है सर। जब हम विकिपीडिया से कुछ बोरो करते हैं, आपने दो चीजें बताई, एक तो वहां पे कभी रेफरेंस मिल जाता है दैट विल दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम दिस सोर्स, सो आपने बताया आप वो रेफरेंस कॉपी पेस्ट करके यू कैन ऐड, then in that case do we leave out the information that we bought this from Wikipedia site? How do we include both? How do we include both? See what we have done here, see madam, यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए मैंने क्या किया था जी। देखिए मैंने इसको, मुझे एडिट करना है तो मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर सकता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। मैनेज सोर्स, ये था मेरा, ब्राउज कर रहा हूं मैं। चिकागो वगैरह वगैरह। तो नाउ देखिए मैडम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अपने आप बियोग्राफी की पूरी एंट्री आ गई। आपको जो नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, एडिट कीजिए। आपको विकिपीडिया से नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप वेब पेज नहीं रखना चाहते हो, ओके कोई इशू नहीं है। मतलब जो चीजें आपको नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको विकिपीडिया के बारे में बताया नहीं, आपको खाली ऑलरेडी मालूम है, ऑथर के नेम आपको मालूम है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको ही रख सकते हो विकिपीडिया। Okay, and then it's finally not a moral issue. I also want to know from, it's not a moral issue in any way कि विकिपीडिया मैंने रेफर नहीं किया, मैंने सिर्फ रेफरेंस रेफर की वहां से। हमने क्या कहा, आपने क्या नहीं, सी अगर if you are copying, when you know that you are copying from the Wikipedia, always give the acknowledge, that is my always give the acknowledge जिसका भी आप कॉपी कर रहे हैं।
हाँ, जी जी लेकिन आप वही मैं पूछ रही थी आपसे। okay. नहीं, whenever it come to the giving the acknowledgement, always give the acknowledgement from the real source, the source that you are following. Okay. If it is book, No, I access Wikipedia and there I get the real source. In that case, can I leave out Wikipedia and stick to the real source? I have to cite both. That's my question. no. You can specify both, no issue. Okay. Okay, so this part is over. Now, similarly, suppose मैं और एक ले रहा हूँ, suppose एक बुक से मैं कॉपी कर रहा हूँ. Technology plays a vital role in our day-to-day life. Okay, assume that I have copied as it is. See how many words are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so in that case, even though if you are not giving a citation, no issue. Up to 14 consecutive word, अगर आप कहीं से कॉपी कर रहे हैं तो 14 से ज्यादा रहे तो आपको क्या करना है, साइटेशन बताना है. 14 से अगर कम है तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज जनरली इट कम्स अंडर द कॉमन नॉलेज ओनली. ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेरी कॉमन नॉलेज है ये. Technology plays a vital role in our day-to-day life. But still, if you have a doubt, always specify it. Always use the citation. So, again, insert citation, add new source. Character? Yes, sir, please. Sir, how many character minimum? 14 words, consecutive 14 words. Sir, excluding verbs, articles, or including? Total 14 words. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, all words. Okay, including article and including everything. Everything. Not more than 14. Okay, now name of web page. So now please remember, this is not a website. So this is what, say books. Suppose एक book से हमने copy की है. So title of the book, say MS Office. Year of publication, say the entity from which it has been published, of course, and the name of the publisher, Advanu Prakashan, and show all other bibliographies. Okay. Now finally देखिए अब क्या करें हम. स्टाइल फिलहाल मैंने APA रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हम इसको चेंज करके बताएंगे आपको. अब आपको कैसे चाहिए वो, बिब्लियोग्राफी फॉर्म में चाहिए कि रेफरेंसेस है आपके. तो फॉर एग्जांपल बिब्लियोग्राफी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ. तो देखिए अपने आप ये दोनों तैयार है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. दिस पार्ट इज क्लियर? Yes. ओके, नाउ मैं इसको चेंज कर रहा हूँ. अपडेट भी कर सकते हैं आप, फिर से कोई नया ऐड किया आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे एक अपडेट का ऑप्शन आ रहा है. जब भी आप कुछ नया ऐड करते होंगे तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो. नो इश्यू एट ऑल. ओके, नाउ अब मैं इसको फॉर्मेट को चेंज. इज इट क्लियर? एक बार अगर आपकी इंफॉर्मेशन आपका टेबल बन के तैयार है तो आपको स्टाइल चेंज करना बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे इज दिस पार्ट क्लियर? वन सेकेंड चेंज. मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, नया फॉर्मेट ले रहा हूँ. सपोज इट इज MLA. ओके, नो इश्यू. देन अगेन बिब्लियोग्राफी. दैट्स ऑल. ऑफिस. और आपने फिर से यही बुक ली है तो आपको क्या करना है, फिर से एंट्री करना नहीं है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है. देखिए दैट्स ऑल. फिर से आपको मतलब एंट्री नहीं करना है वहां पे, सिंपली आपको बुक का नाम सिलेक्ट करना है. दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. तो ऑफकोर्स यहाँ पे फिर से एंट्री आएगी क्या? नहीं आएगी. याद रखना, एक ही बार एंट्री आएगी. साइटेशन आप कितने भी बार कर सकते हो. ओके. Yes. Okay, that's good. Now, any more doubts related to this part? Thank you very much, sir, for elaborating so nicely, so quietly, and so effectively, and so systematically the various referenced points regarding MS PowerPoint in our MS Office Advanced commands. Thank you very much, sir, for your elaboration and for your cooperation, and we acknowledge our heartfelt thanks to you. Thank you very much, sir, on behalf of my Teaching Learning Center and on behalf of my university.